Assalamu alaikum. In this video lecture, I will briefly talk about different concepts related to computer architecture so that anyone interested in working this area could do so as soon as possible. So let's start. Okay, in this example, यहाँ पे आप assume करो कि एक कोड जो है वो C लैंग्वेज में लिखा गया है and there are 5 variables over here. 2 addition operations are there and 1 subtraction operation is being performed. All the variables are assumed to be declared and initialized. Now recall that in Python or in C language कोड जब आप लोग लिख लेते थे तो आप उसके बाद क्या करते थे, उसको सेव करते थे और सेव करने के बाद कंपाइल करते थे. कंपाइल कैसे करते थे? टर्मिनल विंडो में आप GCC और फिर उसके बाद फाइल नेम एंड बहुत सारी चीज़ें लिखते थे और एंटर प्रेस करते थे. एंटर प्रेस करने के बाद फिर आप इसको रन करते थे और फिर आउटपुट आ जाता था. एक्चुअली व्हाट हैपन्स इज़ दैट द C कोड जो आपने सेव किया है it gets first translated into another language which is called assembly language. It gets translated to assembly code. The software or tool which does this job is called compiler. So in this example, let's assume the assembly code for this C code is this. Because you can see that there are 3 instructions given and the first 2 instructions correspond to the 2 addition operations being done over here and the last instruction corresponds to the subtraction operation done in the C code. Okay, now let's look at the meaning of this assembly code. Okay, so the first instruction का मतलब क्या है? Add, it is obvious कि this instruction is performing add. Then there are 3 operands x5, x20 and x21. यहाँ पे जो x5, x20 और x21 है, they are called registers. So this is one register, this is another register and this is the third register. Register क्या है? Register, you can say that register is the place where data is stored. जिस तरह मेमोरी होती है, मेमोरी में डाटा जो है वो स्टोर होता है. So register is the place where you can store data. Where you can store data. Store is usually called write, where you can write data, and even you can retrieve data from a register. Retrieve को कहते हैं read. ठीक है, आप read भी कर सकते हो रजिस्टर से और आप write भी कर सकते हो रजिस्टर को. So x20 is the name of one of the registers present in the computer. ठीक है, more formal definition of a register will be given in some future video. Okay, so अभी मैंने बताया था कि this instruction corresponds to this part of the C code और assume करो कि G में जो है वो 5 है और H में 8 है, 8 stored है. So what will happen, what will be done by this instruction? वो क्या करेगा, वो x20 के अंदर जो वैल्यू है, x20 के अंदर जो है assume करो 5 है और x21 के अंदर assume करो 8 है. So what this instruction will do, ये 5 और 8 को आपस में ऐड कर देगा और जो भी सम आएगा which is 13, that will be stored in register x5. Similar explanation for this add instruction.
and similar explanation for this subtracting. So this is subtract operation. यहाँ पे subtraction जो है वो perform हो रही है, ठीक है. कौन कौन सी दो चीज़ें subtract हो रही हैं, x5 and x6. So basically this part is x5 and this part is x6, ठीक है. सो दोनों रजिस्टर्स जो हैं यानी उनकी जो वैल्यूज़ हैं वो सब्ट्रैक्ट हो रही हैं एंड द रिज़ल्ट इज़ बीइंग स्टोर्ड इन x19. So you can see that you can observe that C code is of one line, whereas the assembly language instructions are present or are scattered or are spread on 3 lines, ठीक है. assembly language में 3 lines इंस्ट्रक्शन यूज़ हो रही है, सी कोड में एक लाइन ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो यूज़ हो रही है. एंड इट इज़ ऑब्वियस दैट असेंबली लैंग्वेज इज़ कोडिंग इन असेंबली लैंग्वेज इज़ मच हार्डर दैन कोडिंग इन सी और सम अदर हाई लेवल लैंग्वेजेस लाइक जावा और पाइथन. So I hope you got this point and let's move forward. सो आप लोगों को पता है कि दुनिया में डिफरेंट लैंग्वेजेस जो हैं वो एग्जिस्ट करती हैं, लाइक इंग्लिश है, उर्दू है, अरबिक है एंड सो ऑन. और हर लैंग्वेज की अपनी एक वोकैबुलरी होती है. वोकैबुलरी क्या है? वोकैबुलरी इज़ सेट ऑफ वर्ड्स विच यू यूज़ टू कम्युनिकेट विद ईच अदर एंड गेट डिफरेंट टास्क्स डन. और अगर कोई एक दो एग्जांपल्स हम देख लें इंग्लिश में, से फॉर एग्ज़ाम्पल पेन एक वर्ड है, बॉटल एक दूसरी वर्ड है, चेयर एंड सो ऑन. इसी तरह उर्दू में, उर्दू की वोकैबुलरी में अगर कोई 2-3 एग्जांपल देख लें कौन कौन से वर्ड्स एग्जिस्ट करते हैं. कुर्सी है, कुर्सी, और इसी तरह मेज़ है एंड सो ऑन. सो सेट ऑफ वर्ड्स इज़ कॉल्ड वोकैबुलरी. सेम बिल्कुल इसी तरह असेंबली लैंग्वेज की भी अपनी वोकैबुलरी है. असेंबली लैंग्वेज की भी अपनी एक वोकैबुलरी है, सेट ऑफ वर्ड्स हैं. और वो सेट ऑफ वर्ड्स जो हैं वो यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं. सो दीज आर द सेट ऑफ वर्ड्स और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट मेक अप the assembly language or that is used to program or code in assembly language, ठीक है. सो से फॉर एग्ज़ाम्पल लोड वर्ड है, लोड बाइट है, ऐड इमीडिएट है, शिफ्ट लेफ़्ट है, इसी तरह स्टोर वर्ड है, ऐड है, सब्ट्रैक्ट है. एंड देयर आर मैनी वर्ड्स, मैनी इंस्ट्रक्शंस दैट मेक अप द assembly language. कंप्यूटर आर्किटेक्चर की ज़ुबान में वोकैबुलरी को वोकैबुलरी नहीं कहते बल्कि उसको हम कहते हैं इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर, आईसा. एंड देयर आर डिफरेंट आईसाज दैट आर बीन यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड. फॉर एग्ज़ाम्पल RISC-V, x86 एंड इसी तरह MIPS है एंड ARM है, ARM है, ठीक है. And in this course we will be focusing on RISC-V ISA. x86 ISAs are commonly found in laptops and desktops. ARM ISA is commonly used in smartphones and digital watches as well. So we will be focusing on RISC-V ISA and this will be the thing which we will be exploring in detail. Okay, so before starting this example, let's explore one concept related to memory. So जब भी आप कोई डाटा स्टोर करते हो या जब भी आप सी में या पाइथन में कोई किसी वेरिएबल में
कोई डाटा जो है वो स्टोर करते हैं, बी इट अ नंबर और स्ट्रिंग, तो होता क्या है, होता ये है कि ये जो 1 है या कोई भी डाटा है ये मेमोरी में जाके स्टोर होता है मेमोरी में. सो दिस इज़ योर मेमोरी. इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ रूम्स where you can store data. एंड ये एक बहुत ही वेग डेफिनेशन है. इसकी असल डेफिनेशन जो है वो फ्यूचर वीडियो में मैं आपको बता दूंगा. सो देर आर मैनी रूम्स इनसाइड द मेमोरी. रूम्स को हम कहते हैं लोकेशंस. सो से फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं मेमोरी जो है वो मैंने बना ली है. दिस इज़ द फर्स्ट रूम, दिस इज़ द सेकेंड रूम, एंड से फॉर एग्ज़ाम्पल दिस इज़ द 8th रूम. सो वन जो है वो किसी भी रूम में जाके स्टोर हो सकता है. तो फर्ज़ करें कि 1 जो है वो यहाँ पे जाके स्टोर हो गया. हर रूम का अपना एक रूम नंबर भी होता है. सो से फॉर एग्ज़ाम्पल इस रूम का रूम नंबर जो है वो 0 है, इस रूम का रूम नंबर जो है वो 1 है. अज्यूम करें कि इस रूम का रूम नंबर जो है वो 8 है, एंड सो ऑन. These room numbers are called addresses. And this one, which is in decimal number system, is first converted into binary number. तो इसका जो बाइनरी नंबर बनता है वो बनता है 000000001. और बाइनरी नंबर में कन्वर्ट होने के बाद ये बाइनरी नंबर जो है वो स्टोर होता है उस रूम में. सो कीप दिस थिंग इन माइंड. ऑल द डाटा विच यू यूज़, विच यू स्टोर और विच यू रीड from the memory, or which you store or you write into the memory, are stored or read in the form of binary number. And each room or each location has 8 bits of data, which is equal to 1 byte. 1 byte is equal to 8 bits, and hence memory is usually known to be byte addressable. तो अगर आपसे कोई ये कहे कि memory is byte addressable, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि memory के हर रूम में 8 बिट्स या 1 बाइट डाटा जो है वो मौजूद है. ओके, सो नाउ लेट मी रीअरेंज दिस स्ट्रक्चर. लेट मी रीड्रॉ इट्स लाइक दिस. अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं हर रूम को, ये वाला जो रूम है, मैं इसको यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ. सो दिस इज़ रूम नंबर 0. इसी तरह ये जो रूम नंबर 1 है इसको मैं यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ. सो दिस इज़ रूम नंबर 1, दिस इज़ रूम नंबर 1, दिस इज़ रूम नंबर 0. सिमिलरली रूम नंबर 2 को मैं यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ, और रूम नंबर 3 को मैं यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ. इन 1 रो, 4 रूम्स इन 1 रो. Similarly, the next 4 rooms in the row above, and so on. इसी तरह मैं हर रो में 4 रूम्स को जो है वो प्लेस कर सकता हूँ. In most of the textbooks, you will find the structure of memories to be something like this. अब ये जो रूम नंबर मैंने अंदर लिखा है, प्रैक्टिस जो है वो ये है कि एड्रेसेस जो है वो अंदर नहीं लिखते, बल्कि प्रैक्टिस जो है वो ये है कि एड्रेसेस को बाहर लिखा जाता है साइड पे. सो दिस इज़ द फर्स्ट रूम नंबर 0. तो इसका एड्रेस मैं यहाँ पे लिख दूँगा 0. कन्वेंशन ये है कि बाकी जो रूम्स हैं उस रो में फर्स्ट रूम के अलावा उनके एड्रेसेस को शो नहीं करवाए जाते, लिखे नहीं जाते. सो दिस इज़ रूम नंबर 1, दिस इज़ रूम नंबर 2, रूम नंबर 3. देन कम टू द नेक्स्ट रो. दिस इज़ रूम नंबर 4. तो ये रूम नंबर 4 का एड्रेस यहाँ पे लिखा जाएगा. फिर दिस रूम नंबर 5, 6, 7 एंड सो ऑन. So note that in this figure, each row का जो साइज़ है या नंबर ऑफ बिट्स जो है,
द नंबर ऑफ बिट्स और द साइज़ ऑफ ईच रो इज़ 4 बाइट्स। ठीक है, मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि 1 रूम में कितने बाइट्स हैं, 1 बाइट है, तो यहाँ पे 4 रूम्स हैं, सो देयर आर 4 बाइट्स पर रो in this figure. Okay, now let's return back to the example which we want to explore. So in this example आप देख सकते हैं कि दो एक अरे जो है वो यूज़ हो रही है, और इसमें हो क्या रहा है कि 8th इंडेक्स में जो वैल्यू पड़ी हुई है अरे ए के अंदर, that is being added to the value in variable h, and the sum is being stored in the 12th index of array a. So ये जो capital A है, this is array, this is an array, and this code is can be assumed to be written in C language. ओके तो जब आप इसको कंपाइल करेंगे तो असेंबली लैंग्वेज में जो इंस्ट्रक्शंस जनरेट होंगी वो कुछ इस तरह की होंगी। 3 instructions correspond to this single line instruction written in C language. Okay, now let's take a look one by one at each of these instructions. So the first instruction is LW. L का मतलब है लोड और W का मतलब है वर्ड, लोड वर्ड। X9 is the name of the register, 32 and X22 is the address of the memory जहाँ से वैल्यू को ट्रांसफ़र किया जाएगा रजिस्टर X9 के अंदर। सो से फॉर एग्जांपल दिस इज़ योर रजिस्टर सेट ऑफ रजिस्टर्स हैं X0 X1, से फॉर एग्जांपल दिस इज़ X9। सो ये X0 है, ये X1 है, ये X9 है। ठीक है, सो लोड वर्ड क्या करेगा, लोड वर्ड जो है वो मेमोरी में जाएगा। सो दिस इज़ योर मेमोरी में जाएगा। मोर स्पेसिफिकली यू कैन से दिस इज़ योर रैम। सो मेमोरी में वो जाएगा और मेमोरी से डाटा उठा के रजिस्टर के अंदर डालेगा। किस रजिस्टर के अंदर, X9 रजिस्टर के अंदर डालेगा। और नाउ द क्वेश्चन इज़ मेमोरी के किस लोकेशन से डाटा को उठा के X9 के अंदर डालना है, that information is present over here. So let's break it down and try to understand what is happening here. So the address from where the data is to be retrieved and stored in X9 is equal to 32 plus the value in this register X22, the value in X22. Assume the value in X22 is 0, so 32 plus 0 is 32. So address 32 पे जो वैल्यू पड़ी हुई है, so this is address 0, this is address 4, this is address 8. So address 32 first A8 एड्रेस A8 32 अभी मैं आपको जो है वो ड्रॉ कर दूँ। सो एड्रेस 32 में जो वैल्यू पड़ी हुई है, अज्यूम करो ये एड्रेस 32 है, एड्रेस 32 में जो वैल्यू पड़ी हुई है, सो दिस इज़ द रूम जिसका एड्रेस 32 है। तो इस एड्रेस में जो वैल्यू है उसको ट्रांसफ़र कर दो रजिस्टर X9 में। तो फर्स्ट करो एड्रेस 32 में 5 इंटीजर जो है स्टोर्ड है, तो 5 जो है वो X9 में स्टोर हो जाएगा। ओके, कीप वन थिंग इन माइंड दैट वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है, वर्ड
रिमेंबर दैट अभी मैंने बताया था पिछली स्लाइड में कि 1 बाइट इज़ इक्वल टू 8 बिट्स, 1 वर्ड इज़ इक्वल टू 4 बाइट्स विच इज़ इक्वल टू 32 बिट्स। 4 बाइट्स का क्या मतलब है? 4 रूम्स या 4 लोकेशंस, क्योंकि ईच लोकेशन हैज़ 1 बाइट डाटा। सो चूँकि यहाँ पे लोड वर्ड लिखा हुआ है तो सिर्फ रूम नंबर 32 का डाटा X9 में नहीं जाएगा, बल्कि इस रूम का भी डाटा, इस रूम का भी डाटा और इस रूम का, तो इन चारों रूम्स का डाटा, इन चारों रूम्स का डाटा X9 के अंदर जो है वो स्टोर होगा। 4 रूम्स का डाटा X9 के अंदर स्टोर होगा। सो से फॉर एग्ज़ाम्पल इस रूम में 9 है, इस रूम में 1 है, उस रूम में 0 है। सो 5910 विल बी स्टोर्ड इन X9। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है। वर्ड मीन्स कि आपने 4 बाइट्स जो है वो ट्रांसफ़र करना है फ्रॉम मेमोरी टू द रजिस्टर। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो दिस इज़ हाउ यू कैलकुलेट द एड्रेस। एड्रेस कैसे कैलकुलेट करते हैं? इसमें आपने क्या करना है, 32 को ऐड करना है टू द वैल्यू इन X22। 32 इज़ कॉल्ड ऑफसेट एंड X22 इन दिस केस इज़ कॉल्ड बेस रजिस्टर। सो बेस रजिस्टर की वैल्यू आपने ऐड करनी है ऑफसेट में, दैट विल गिव यू द एड्रेस फ्रॉम वेयर टू लोड द डाटा फ्रॉम। ठीक है। सो कीप वन थिंग इन माइंड दैट लोड का क्या मतलब है? लोड का मतलब है ट्रांसफ़र द डाटा फ्रॉम मेमोरी टू रजिस्टर, ट्रांसफ़र डाटा फ्रॉम मेमोरी टू रजिस्टर, नॉट द अदर वे अराउंड। स्टूडेंट्स जो हैं वो यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। ओके, सो ये वाली जो इंस्ट्रक्शन है डैट इज़ दिस पार्ट ऑफ द कोड A8। ठीक है, इट कॉरस्पॉन्ड्स टू दिस पार्ट ऑफ द कोड विच इज़ A8। दिस इंस्ट्रक्शन कॉरस्पॉन्ड्स टू this part of the code। ठीक है। so X9 is basically A8। ठीक है, and X21 is H in C, और assembly में ये क्या है? H in assembly is X21, A8 in assembly is X9। so दोनों की वैल्यूज़ जो हैं वो ऐड हो रही हैं और X9 में ही स्टोर हो रही हैं। फिर उसके बाद क्या हो रहा है? उसके बाद ये हो रहा है कि ये स्टोर वर्ड इंस्ट्रक्शन इज़ ट्रांसफरिंग द वैल्यू फ्रॉम X9 to this address in the memory। so what is the address? The address is 48 plus the value in X22। तो assume करो कि the value in X22 is 0, so address is 48। so फर्ज करो कि वो 48 जो है वो एड्रेस यहाँ पे बनता है। so what this instruction will do, it stands for, S stands for store, W stands for word। तो पूरा एक word which is equal to 4 bytes जाएगा 48 वाले रूम में। ठीक है, 48 वाले रूम में एक बाइट, दूसरा बाइट 49 वाले रूम में, तीसरा बाइट 50 वाले रूम में, और चौथा बाइट जो है वो 51 वाले रूम में स्टोर हो जाएगा। ठीक है। सो स्टोर का क्या मतलब है? स्टोर मीन्स ट्रांसफ़र डाटा फ्रॉम रजिस्टर टू मेमोरी। keep this thing in mind, this is very very important। now one very important thing is that the starting address of the array, the first element of the array is A0। it is A0 and it starts at address 0। ठीक है।
सेकेंड एलिमेंट ऑफ द अरे विच इज़ A1, इसका जो स्टार्टिंग एड्रेस है वो 4 है। A2 का स्टार्टिंग एड्रेस जो है वो A8 है। So can you tell me what is this, and can you tell me what is this? What is the relationship between the index of the array? What is the relationship between the index of the array and the address where it is stored? So यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है तो 1 के corresponding 4 है, अगर यहाँ 2 है तो यहाँ पे 8 है। So can you see that index is being multiplied by 4 and you get the address. So index is 4 times, sorry, the address is 4 times the index. Address is 4 times the index. So it means that अगर आपने इंडेक्स निकालना हो, आपने एड्रेस को 4 से डिवाइड करना है। सो व्हाट इज़ दिस इंडेक्स देन? द इंडेक्स इज़ A8। इन दिस केस 32 डिवाइडेड बाय 4 इज़ 8, 48 डिवाइडेड बाय 4 इज़ 12। सो दिस इज़ A12। ठीक है, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस केस इज़ वैलिड ओनली इफ़ लोड वर्ड इज़ प्रेजेंट इन द असेंबली लैंग्वेज। अगर लोड बाइट हो या कोई और, सो ऐसे लोड से हाफ बाइट हो तो दिस कांस्टेंट वुड बी डिफरेंट। सो ये सोचिएगा कि कांस्टेंट जो है वो क्या होगा। ओके, सो in this example we assume that the value in base register is 0. The value in the base register is 0. Value in base register 0 means that the starting address of the array is 0. The point is that array could be placed anywhere in the memory. जहाँ जगह मिलेगी वहाँ array को place किया जाएगा। So what does it mean? It means that उसका starting address जो है वो हमेशा 0 नहीं होगा। So it means that the starting address of the array is not always 0. So what does it mean? It means that the base register could be, the value of base register could be non-zero as well. So हो सकता है, it is possible that ये 0 ना हो बल्कि ये क्या हो जाए, ये 12 हो जाए। सो इफ़ दिस इज़ 12 दैन 13, 14, 15 ये क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। ठीक है, सो 12 12 जो है ये 44 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा। सो बेस एड्रेस कुड बी नॉन ज़ीरो। दिस इज़ वन इम्पॉर्टेंट पॉइंट, बेस एड्रेस could be non-zero, and one important point to note down is that बेस रजिस्टर की वैल्यू जो मर्ज़ी हो, बेस रजिस्टर की वैल्यू जो मर्ज़ी हो, A8 को एक्सेस करने के लिए जो ऑफसेट है दैट विल रिमेन द सेम। इसी तरह A12 को एक्सेस करने के लिए जो ऑफसेट है 48 दैट रिमेन्स द सेम। सो ऑफसेट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ऑफसेट रिमेन्स अनचेंज्ड इफ़ बेस रजिस्टर जो है वो, इफ़ बेस रजिस्टर चेंजेस। ओके, सो द offset in this case when base register is changed remains unchanged। ठीक, ऑफसेट जो है वो चेंज नहीं होता, कीप दिस थिंग इन माइंड।
and how is this all thing is being handled. So say for example अगर बेस एड्रेस जो है वो चेंज हो जाता है, सो x22 के अंदर 12 जो है वो आ जाएगा, 12 आ जाएगा. सो 12 प्लस 32, व्हाट इज़ द एड्रेस? 12 32 plus 12 which gives 44, and 44 is the correct location, and this is the location which we want to access. तो correct address जो है वो आ जाता है if you don't change the offset. So offset does not change if you change the base register. Keep this thing in mind. Okay, so one important point to note that whenever there is array being used in the C code, आपको assembly language में load और store instructions जो है वो नज़र आ जाएंगी. Okay, this is another instruction in assembly language, add I x22 x22 4. तो ये instruction जो है वो क्या कर रही है? It is adding the value in x22 to 4. So say for example x22 के अंदर 10 है, so what will happen? 10 will be added to 4 and the result, which is 14, will be stored back to x22. The third operand of this adder instruction is called immediate value or constant value. ठीक है. So the third operand is a constant. Unlike the add instruction, add instruction में क्या था? All the three operands were registers. All the three operands were registers. ये पीछे आप आए यहाँ पे देखें, तमाम operands जो हैं वो registers हैं. इसी तरह यहाँ पे आके देख लें आप, all the operands are registers. ठीक है, all the operands are registers. जबकि add I में जो थर्ड थिंग है, जो तीसरी चीज़ है उस इंस्ट्रक्शन में, वो क्या है? वो एक कांस्टेंट है. इट कुड बी एनी कांस्टेंट, 4 3 2 1. इट कुड बी नेगेटिव नंबर एज वेल एंड सो ऑन. RISC-V ISA में there are 32 registers, x0 x1 all the way up to x31, and each register is of 32 bit. हर रजिस्टर जो है वो 32 बिट का रजिस्टर है. ये आपने जो है सेंड में रखना है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सो नाउ सो फार व्हाट यू हैव डन, व्हाट यू हैव स्टडीड, आपने ये स्टडी किया है कि जो सी कोड है दैट इज़ ट्रांसलेटेड टू असेंबली कोड बाय द कंपाइलर, एंड फिर उसको आप रन करते हो. बट बिफोर रनिंग एक और स्टेप होता है. वो क्या? वो ये है कि असेंबली कोड इज़ ट्रांसलेटेड टू मशीन कोड, और फिर ये जो मशीन कोड है दैट इज़ स्टोर्ड inside the memory, and then execution starts from there. So in this example हम ये देखेंगे कि how to convert this assembly language instruction into machine code. Okay, so in order to solve this, refer to this sheet, रेफ़र टू दिस टेबल. और इस टेबल में आप देखें कि ऐड इंस्ट्रक्शन कहाँ लिखी हुई है. ऐड इंस्ट्रक्शन जो है वो यहाँ पे लिखी हुई है, ऐड RD RS1 RS2. ठीक है. सो ऐड इंस्ट्रक्शन का जो जनरल फॉर्मेट है दैट इज़ ऐड RD RS1 RS2. कीप इन माइंड, ये कहाँ से मैंने देखी है? टेबल से. द टेबल, द वोकेबलरी ऑफ असेंबली लैंग्वेज. ओके, नाउ गोइंग बैक टू द सेम टेबल, ये वाली.
तो इसमें आप देखें कि जो ऐड इंस्ट्रक्शन है उसका जो टाइप है that is R type. Go back and see, this is the R type. R type is written over here, and this this whole figure will give you the format in which the assembly instruction will be stored as a binary number. सो आर टाइप का ये वाली जो रो है इसको आप क्या कर दें, कॉपी पेस्ट कर दें. सो हाउ मेनी बॉक्सेस आर देयर, 1 2 3 4 5 6 6 बॉक्सेस आर देयर. सो लेट्स ड्रॉ 6 बॉक्सेस, 1 2 3 4 5 6 boxes are there. Referring back, so OPRD function 3, OPRD function 3, ये RS1 है, ये RS2 है और ये फंक्शन 7 है. तो इसको वेरीफाई करते हैं, RS1 RS2 एंड फंक्शन 7. ओके, अब आपने क्या करना है कि इन दोनों इंस्ट्रक्शंस को आपस में आपने मैप करना है. सो RD जो है वो बेसिकली X9 है, RS1 जो है वो X20 है और RS2 जो है वो X21 है. तो मैपिंग हो गई है. और नेक्स्ट इज़ टू ट्रांसलेट ईच रजिस्टर नंबर इनटू बाइनरी नंबर. सो द बाइनरी नंबर ऑफ X9 इज़ it is 1001. This is the binary of 9. Okay, so the binary representation of 20 is 2 10s are 20, remainder आ गया 0, 2 5s are 10, remainder आ गया 0, 2 2s are 4, remainder आ गया 1, 2 1s are 2, remainder आ गया 0, 2 0s are 0, remainder आ गया 1. बॉटम टू टॉप चलें, सो 1 0 1 0 0, it is the binary representation of number 20. और 21 का क्या होगा फिर, 1 0 1 0 1. This will be the binary representation of 21. ओके, सो 9 को भी हमने कन्वर्ट कर लिया है बाइनरी में, 20 को भी कर लिया, 21 को भी कर लिया. ठीक है. सो X9 इज़ RD. सो RD वाले बॉक्स में X9 का जो बाइनरी है वो आपने लिखना है, विच इज़ 1001. ओके, कम बैक टू दिस स्लाइड. यू कैन सी दैट यहाँ पे लिखा हुआ है 6:0, 11:7, 14:12. अब ये 6:0 का मतलब क्या है, नंबर ऑफ बिट्स इन दिस बॉक्स इज़ 7. देयर आर 7 बिट्स इन दिस बॉक्स, 0 से लेके 6 तक 7 बिट्स हैं. हाउ मैनी बिट्स आर देयर इन दिस बॉक्स, RD के बॉक्स में कितने बिट्स हैं, देयर आर 11 - 7 विच इज़ इक्वल टू 4. फिर आपने 1 ऐड करना है, सो देयर आर 5 बिट्स in this box. So ये नंबर्स भी लिख देते हैं, 6:0, 11:7, 6:0, 11:7, ये है 12, 14:12, 19:15.
14:12, 19:15, 24:20, 24:20 and 25:31. So how many bits are there in these 6 boxes? Total number of bits 32 bit. There are 32 bits over here, क्योंकि स्टार्टिंग बिट की जो वैल्यू है वो 0 है और एंडिंग बिट की वैल्यू जो है वो 1 है. सो इन दिस बॉक्स देयर शुड बी 5 बिट्स. हमने तो 4 बिट्स लिखी हैं. सो ऐड 1 0 ओवर हेयर. एडिंग 0 टू द लेफ्ट मेक्स नो डिफरेंस. सिमिलरली अब ये जो x20 है, x20 जो है वो इट कॉरस्पॉन्ड्स टू RS1. सो इस बॉक्स के अंदर 20 का जो बाइनरी नंबर है वो आपने लिखना है, विच इज़ 1 0 1 0 1 0 0. ठीक है. RS1 के अंदर भी कितने बिट्स होने चाहिए? 5 बिट्स हैं. तो 5 बिट्स जो है हमने लिख दिए हैं. कोई एक्स्ट्रा ज़ीरो ऐड करने की ज़रूरत नहीं है. सिमिलरली ये जो x21 है, इट कॉरस्पॉन्ड्स टू, इसकी मैपिंग किसके साथ हुई हुई है? किस फील्ड के साथ हुई है? RS2 की फील्ड के साथ हुई हुई है. सो 1 0 1 0 1 आपने यहाँ पे लिख देना है. सॉरी, ये मैंने गलत जगह पे लिख दिया. ये आपने यहाँ पे नहीं लिखना, बल्कि आपने इसको लिखना है यहाँ पे 1 0 1 0 1. RS2 वाले बॉक्स में आपने इसको लिख देना. सो अगेन ये 5 बिट्स की फील्ड है, 5 बिट्स होनी चाहिए और 5 बिट्स ही हमने लिख दिया है. कोई एक्स्ट्रा ज़ीरो लिखने की ज़रूरत नहीं है. 3 बॉक्सेस रह गए हैं. फंक्शन 7, फंक्शन 3, OP. OP इज़ कॉल्ड ऑप कोड. ठीक है. तो दोबारा इस स्लाइड पे आ जाएं आप. ऐड इंस्ट्रक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग जो ऑप कोड है वो ये है 0 1 1 0 0 1 1. तो वहाँ पे आप लिख दो 0 1 1 0 0 1 1. ये मैंने लिख दिया. फंक्शन 3 वाली फील्ड उसी स्लाइड में अवेलेबल है. तो फंक्शन 3 जो है वो 000 है. फंक्शन 7 जो है वो 7 ज़ीरोज़ जो है वो आपने लिखने हैं. सो गो बैक. तो 7 ज़ीरोज़ आपने लिखने हैं फंक्शन 7 में. 1 2 3 4 5 6 7 और 3 ज़ीरोज़ जो है वो आपने लिखने हैं यहाँ पे. 3 ज़ीरोज़ में आपने. सो द मशीन कोड फॉर दिस असेंबली इंस्ट्रक्शन इज़, इसको मैं ज़रा रीराइट कर लेता हूँ. 0 0 0 0 0 0 0. ये यहाँ पे आ गया. फिर 1 0 1 0 1. ये यहाँ पे आ गया. फिर 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1. ये ऑप कोड की फील्ड जो है वो यहाँ पे आ गई. सो दिस बाइनरी नंबर will be stored in the memory after you compile the program. ठीक है. प्रोग्राम को कंपाइल करने के बाद ये बाइनरी नंबर जो है which represents this instruction will be stored inside the memory. और फिर जब आप रन का कमांड एंटर करोगे या प्ले बटन को प्रेस करोगे, सो दिस विल बी एग्जीक्यूटेड और 2 नंबर्स जो हैं वो ऐड हो जाएंगे एंड सम विल बी स्टोर्ड इन X9. So this what happens when you save your C code and then compile your C code, and just before running the C code, or just before running the actual code जो रन होता है CPU में, वो ये वाला कोड है.
इन बाइनरी फॉर्म, 0101 के फॉर्म में ये कोड जो है वो रन होता है। द फ्यूचर वीडियोज यू विल सी कि एग्जैक्टली वो कौन कौन से स्टेजेस और कौन कौन से प्रोसेसेस हैं जो एक्चुअली इसको एग्जीक्यूट करते हैं। सो दिस इज़ द ट्रांसलेशन ऑफ असेंबली लैंग्वेज टू मशीन कोड। ओके, तो ये वाला टास्क जो है वो आप लोगों ने खुद करना है। हाउ टू ट्रांसलेट द लोड वर्ड, यू हैव टू ट्रांसलेट द ऐड इंस्ट्रक्शन, ट्रांसलेट द ऐड आई, ट्रांसलेट द स्टोर वर्ड इंस्ट्रक्शन। ये आप लोगों ने खुद करना है। यूज़ दीज 2 स्लाइड्स, ठीक है। तो इसकी एक PDF फाइल अवेलेबल है, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो उस PDF फाइल में आप इसको देख लें, इसको ट्रांसलेट कर लें। ओके, सो दिस इज़ द C कोड इन विच कंडीशनल स्टेटमेंट्स आर बीइंग यूज्ड। कंडीशनल स्टेटमेंट्स कौन सी स्टेटमेंट्स होती हैं? इफ़ एल्स वाली, इफ़ एल्स, इफ़ या एल्स स्टेटमेंट्स को कंडीशनल स्टेटमेंट्स कहते हैं। When you translate this C code to assembly language, you get something like this. Okay, so the first instruction is BNE instruction. B का मतलब जो है वो ब्रांच है, N का मतलब जो है वो नॉट है, E का मतलब जो है वो इक्वल है। ब्रांच नॉट इक्वल, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जंप टू दिस प्लेस। अब ये एल्स कहाँ पे लिखा हुआ है? एल्स जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन? जंप टू एल्स व्हेन x22 इज़ नॉट इक्वल टू x23। सो से फॉर एग्जांपल x22 के अंदर वैल्यू है 12, x23 के अंदर वैल्यू है 5। अब 12 और 5 आपस में इक्वल नहीं है। सो व्हाट विल हैपन व्हेन कंप्यूटर विल एग्जीक्यूट दिस इंस्ट्रक्शन? इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के फ़ौरन बाद कंप्यूटर विल जंप टू दिस इंस्ट्रक्शन एंड स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग इट। रिमेंबर दैट असेंबली लैंग्वेज की जो एग्जीक्यूशन है वो सीक्वेंशियल है। That is sequential and top to bottom execute, यानी को the instruction written at the very top is executed first और फिर sequence में execution जो है वो होती है। So the second instruction that will be executed, अगर ये चीज़ ना होती, ठीक है, अगर ये चीज़ ना होती तो okay, so let's go back to this assembly instruction. So the first instruction that will be executed is this, second जो instruction है वो ये, third instruction ये, fourth instruction ये, execute sequential। And but in this case the execution is not sequential and the computer will jump to the place where the label is else and it will start executing this instruction. This is self-explanatory, इसको मैं already explain कर चुका हूँ। And this is another, ये basically एक branch instruction, this is called branch instruction, ठीक है। branch means to jump, ठीक है। दिस इज़ अनदर ब्रांच इंस्ट्रक्शन, ब्रांच इक्वल। अब ये ब्रांच इक्वल का क्या मतलब है? ब्रांच इक्वल का मतलब ये है कि जंप टू दिस लेबल, और ये लेबल जो है वो यहाँ पे है। जंप टू दिस लेबल व्हेन, जब x0 की वैल्यू इस x0 की वैल्यू के बराबर हो जाए। सो अब चूँकि ये x0 और ये x0 both the registers are the same register x0, so the condition is true and computer will jump to exit. Okay, now remember one thing, in RISC-V ISA
in RISC-V ISA x0 is always 0. It is physically grounded, फिज़िकली ग्राउंड के साथ कनेक्ट किया जाता है, हार्ड वायर्ड किया जाता है, इसकी वैल्यू हमेशा जो है वो 0 है। ठीक, ओके। सो फ़र्ज़ करें कि यहाँ पे वैल्यू जो है वो 5 है। सो नाउ व्हाट विल हैपन, x22 और x23 दोनों की वैल्यूज़ जो है वो 5 है। बोथ आर इक्वल। अब सिंस बोथ आर इक्वल, ब्रांच नहीं होगा, जंपिंग वाला काम नहीं होगा। सेकेंड इंस्ट्रक्शन दैट विल बी एग्जीक्यूटेड इज़ दिस इंस्ट्रक्शन। फिर उसके बाद ये वाली इंस्ट्रक्शन जो है एग्जीक्यूट होगी। ये कंडीशन तो हमेशा ट्रू है, एंड देन कंप्यूटर विल गो टू द एग्जिट लेबल। उसके नीचे अगर कोई कोड हुआ वो एग्जीक्यूट होगा, वरना प्रोग्राम यहाँ पे एंड हो जाएगा। नाउ ऑब्जर्व दैट दिस असेंबली कोड corresponds to the C code. How it is mapped to the C code, ये मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ कि how this assembly code related to the C code written above. So यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, G और H आपस में ऐड हो रहे हैं और F में स्टोर हो रहा है। कब? जब I और J आपस में बराबर। जब ये वाली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगी तो ये वाली इंस्ट्रक्शन जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होगी। दिस विल नॉट बी एग्जीक्यूटेड। दिस थिंग यू हैव स्टडीड इन C लैंग्वेज एज वेल एज इन पाइथन लैंग्वेज। अच्छा, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इन द असेंबली लैंग्वेज आप देख सकते हैं कि x22 इज़ बेसिकली I, x23 इज़ J। ठीक है, दोनों अगर बराबर हैं, बोथ आर इक्वल, x22 x23 अगर इक्वल हैं तो ऐड वाली इंस्ट्रक्शन जो है चलेगी। दिस ऑपरेशन विल बी परफॉर्म्ड। So this instruction corresponds to this instruction. C कोड में हमने देखा था कि जब ये वाली इंस्ट्रक्शन चलेगी तो ये वाली नहीं चलेगी, ये वाली नहीं चलेगी। लेट्स सी के असेंबली में ऐसा हो रहा है। सो असेंबली में लैंग्वेज में इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के बाद ये वाली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी, एंड दिस इज़ ऑलवेज ट्रू, एंड हेंस जंप विल बी परफॉर्म्ड एंड दिस इंस्ट्रक्शन विल नॉट बी एग्जीक्यूटेड। यानी सब्ट्रैक्शन वाला जो काम है वो नहीं होगा। सो दिस कन्फर्म्स दैट इफ़ एल्स, सी कोड में जो इफ़ एल्स है दैट कॉरस्पॉन्ड्स टू द इफ़ एल्स ऑपरेशन इन द सी लैंग्वेज। ठीक है, दूसरी बात नोट करने वाली जो है वो ये है कि whenever there is a conditional statement in the higher level language, if else statement जब भी आपको नज़र आएगा C में, तो असेंबली में आप लोगों को ब्रांच इंस्ट्रक्शंस जो है वो देखने को मिलेगी। वो ब्रांच इंस्ट्रक्शन BNE भी हो सकता है, ब्रांच इक्वल भी हो सकता है। सो BNE BQ आर वेरी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस to implement conditional statements present in higher level language. Let's take a look at the last example. So last example में एक loop, while loop जो है वो, while loop का कोड जो है वो लिखा हुआ है। save is the name of the array, k is a वेरिएबल और I की वैल्यू में इंक्रीमेंट हो रही है। सो यहाँ पे लिखा हुआ है कि assume that I corresponds to x22 and k corresponds to x24 and the base of the array is x25। इसका जो corresponding C कोड है वो ये है, this is the corresponding C code right over here। सो यहाँ पे लेट्स फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हो क्या रहा है।
The first line of the code is SLLI, which is shift left logical immediate. वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, shift left logical immediate. अब इसका मतलब क्या है? ओके, सो अज्यूम करें कि x22 के अंदर वैल्यू 1 है इन डेसिमल नंबर सिस्टम. बाइनरी नंबर सिस्टम में ये क्या होगा? ये होगा 0001. 4 बिट अज्यूम कर लो, 4 बिट नंबर है, ठीक है. शिफ्ट लेफ़्ट वाला कमांड या शिफ्ट लेफ़्ट वाली इंस्ट्रक्शन क्या करती है? इट शिफ्ट्स ईच बिट of x22 towards the left 2 times. Shift each bit of x22 towards the left कितनी दफ़ा? 2 times. So जब आप एक दफ़ा शिफ्टिंग करोगे towards the left तो ये क्या बनेगा? ये 1 जो है वो इधर आ जाएगा और 1 की जगह पे 0 जो है वो आ जाएगा. सो दिस विल बी 0 0 1 0, ठीक है. सो यू कैन अज्यूम कि पीछे से जो एक 0 जो है वो 1 की जगह ले लेगा. इफ़ यू शिफ्ट दिस 1 मोर टाइम, ये 1 जो है वो इधर जाएगा, ये 0 जो है वो बाहर चला जाएगा, ये 0 जो है उसकी जगह पे आ जाएगा और पीछे से एक नया 0 जो है वो आ जाएगा. सो व्हाट विल बी, और ये वाला 0 जो है वो यहाँ ट्रांसफ़र होगा. सो व्हाट विल बी द फाइनल रिज़ल्ट? द फाइनल रिज़ल्ट विल बी 0 1 0 0. सो ईच बिट इज़ शिफ्टेड टुवर्ड्स द लेफ़्ट 2 टाइम्स. इसका डेसिमल नंबर सिस्टम में नंबर क्या बनता है? ये बनता है 4, ठीक है. सो ओरिजिनल नंबर वाज 1 and it has been converted to 4. So shifting left by 2 is equivalent to multiplying the original number by 4. एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं. सो से फॉर एग्जांपल मेरे पास एक बाइनरी नंबर है 0110. शिफ्ट इट 2 times टूवर्ड्स द लेफ़्ट. पहली दफ़ा जब आप इसको शिफ्ट करोगे तो ईच बिट जो है वो लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट होगा. 0 जो है वो बाहर निकल जाएगा, 1 इसकी जगह पे आ जाएगा, ये वाला 1 इधर आ जाएगा, ये 0 जो है इधर आ जाएगा. सो व्हाट विल बी द नंबर? 1 1 0 और पीछे से नया एक 0 जो है वो आ जाएगा 1 1 0 0. जब आप दूसरी दफ़ा इसको शिफ्ट करेंगे, ये 1 बाहर निकल जाएगा, ये 1 यहाँ पे आ जाएगा, ये 0 इधर आ जाएगा, ये 0 इधर आ जाएगा. सो दिस विल बी 1 0 0 0. एक नया 0 जो है वो पीछे से आ जाएगा. सो ओरिजिनल नंबर क्या है? ओरिजिनल नंबर इज़ इन डेसिमल. सो ओरिजिनल नंबर इज़ 6 एंड जो आपका जो फाइनल नंबर है that is 3, that is 8. ओके, सो नाउ आप लोगों को का एक क्वेश्चन जो है वो ये हो सकता है कि आप कह सकते हैं कि सर आपने तो कहा था कि 2 टाइम्स शिफ्ट करने से फाइनल रिज़ल्ट जो है वो ओरिजिनल नंबर का क्या 4 टाइम्स होगा. 6 4s are 24, लेकिन मुझे तो मिला 8. द रीज़न इज़ दैट द नंबर ऑफ बिट्स यहाँ पे कम है. इफ़ आई इंक्रीज़ द नंबर ऑफ बिट्स टू मे बी 2 or 3, then you will get the original answer which is 24. ये जो लास्ट, ये जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है वो ज़ाया हो रही है, वो काउंट ही नहीं हो रही, उसकी कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं है, जिसकी वजह से आंसर जो है वो सही नहीं आ रहा. एनीवेज, मेरा तो मेन मकसद था ये कॉन्सेप्ट देना शिफ्ट लेफ़्ट का, हाउ शिफ्टिंग लेफ़्ट जो है वो मल्टीप्लाई कॉरस्पॉन्ड्स टू ओके. सो नोट करने वाली बात इसमें यह है कि शिफ्टिंग टूवर्ड्स द लेफ़्ट
is equivalent to multiplying by a number. So if you shift left by 1, it is equivalent to multiplying the original number by 2. This is a very very important concept, ये आपने ध्यान में रखना है. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास एक नंबर है 0010 विच इज़ 2 इन डेसिमल, शिफ्टिंग इट बाय 1 टूवर्ड्स द लेफ़्ट क्या बनेगा 0100 विच इज़ 4. तो 2 जो है वो मल्टीप्लाई हुआ 2 से एंड यू गेट 4. सो शिफ्टिंग लेफ़्ट बाय 1 इज़ इक्वलेंट टू मल्टीप्लाइंग द ओरिजिनल नंबर बाय 2. ओके, सो एनीवेज सो यहाँ पे जो है वो x22 जो है वो इट इज़ बीन शिफ्टेड टुवर्ड्स द लेफ़्ट बाय 2. फिर उसके बाद ऐड वाला ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, फिर लोड वाला ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म हो रहा है, फिर ब्रांच नॉट इक्वल, फिर ऐड आई एंड ब्रांच इक्वल यहाँ पे जो है वो परफॉर्म हो रहा है. मुझे ये फोटोकॉपी लग रही है. ठीक है, ओरिजिनल है. ओके, सो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ब्रांच इक्वल x0 x0. सो दिस कंडीशन इज़ ऑलवेज ट्रू. सो अज्यूम करते हैं कि x9 और x24 बोथ आर इक्वल, हैंस ये वी विल नॉट जंप टू द एग्जिट लेबल एंड हैंस ब्रांच इक्वल विल बी एग्जीक्यूटेड. ठीक है, सो ब्रांच इक्वल की जो ये कंडीशन है वो ऑलवेज ट्रू है. सो जंप टू द लोकेशन वेयर लूप इज़ रिटन. अब लूप कहाँ पे लिखा गया है, कहाँ पे आपको लूप लिखा हुआ नज़र आ रहा है, यहाँ पे लूप नज़र आ रहा है. सो यू कैन सी दैट असेंबली कोड में भी आप लूप जो है वो लगा सकते हो यूजिंग ब्रांच इंस्ट्रक्शंस. ठीक है, सो आई विल नॉट एक्सप्लेन दिस कोड इन मच डिटेल. I just wanted to show you people that it is possible to use conditional statements and loops in assembly language as done over here. ठीक है, सो ये जो है ये आप लोगों ने ख़ुद इसको स्टडी करना है, इस चीज़ को आपने ख़ुद एनालाइज करना है. तो से फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बता देता हूँ कि ये वाली जो इंस्ट्रक्शन है वो असेंबली में ये वाली इंस्ट्रक्शन है, दिस वन. ठीक, एंड सेव आई की जो कंपैरिजन हो रही है के के साथ वो यहाँ पे हो रही है, यहाँ पे इस इंस्ट्रक्शन में हो रही है. ठीक है, सो फील फ्री टू एक्सप्लोर दिस कोड. इसको देखो कि हाउ कि असेंबली लैंग्वेज में जो आउटपुट आ रहा है और जो सी कोड का जो आउटपुट आ रहा है वो सेम है कि नहीं है. assume any values for all the registers. ठीक है, assume any value और फिर इसको चला के देखो एंड कॉन्सेप्ट जो है उसको क्लियर करने की कोशिश करो. थैंक यू वेरी मच. विल मीट नेक्स्ट टाइम. अल्लाह हाफ़िज़.